Help us understand what is safe sex and all these young women who are getting sexually active. What is it that they should know when they are venturing into that phase of their life? Safe sex does not mean ऐसा sex जिसमें pregnancy ना हो सके. Safe sex is the kind that protects you from infections. तो पहला misconception हम यही पहले इसको हटा देते हैं. The second thing is कि everybody, men, women, everybody, as early as you can आप HPV का vaccination ज़रूर लगवाइए. So HPV is a virus which is a sexually transmitted virus, and it's linked to a lot of different cancers, particularly cervical cancer. So that bouncer we were talking about at the bottom part of the uterus, it's the second most common cancer in urban women in India, or rural areas mein it's the first most common cancer And I think after breast would be the number one. in urban areas. In rural areas cervical is the number one. It's so prominent, but हम breast cancer के बारे में इतना सुनते हैं, cervical cancer के बारे में सुनते ही नहीं है. For people who don't have a cervix, there's other cancers as well. Back of the throat, mouth, anus, penis, vulva, vagina. बहुत सारे cancers से linked है HPV. It is also the only cancer in the world that is preventable with a vaccine. So you get HPV through sexual intercourse, not intercourse, sexual exposure. और आप इसको एक वैक्सीन से अपने आप को HPV के सर्टन स्ट्रेन से बचा सकते हैं जो कैंसर कॉजिंग होते हैं. 9 साल से 45 साल यानी 9 to 45 कोई भी ये वैक्सीन लगवा सकता है. मेल फीमेल डजेंट मैटर. आइडियली आप सेक्स करने से पहले इसको लगवाइए ताकि आपको ऑल अराउंड प्रोटेक्शन मिले. बट इवन इफ़ यू हैड सेक्स और यू हैड एनी एक्सपोजर, प्लीज़ इस वैक्सीन को लगाइए. इन द UK दे गिव इट टू एवरीबडी अंडर द एज ऑफ 13, एंड इन 10 years उन्होंने 90% रिडक्शन देखा है सर्विकल कैंसर केसेस में. और जनरली मेडिसिन में हम ऐसे नंबर्स नहीं देखते हैं 10 साल में 90% कैंसर रिडक्शन, बट it's there. I have a petition to the government to make it free and a part of the national immunization protocol, because otherwise वैक्सीन 10,000 रुपये की है तो लगवाना मुश्किल है. अभी नई वैक्सीन लॉन्च हुई है वो 4,000 की है, but still it's not accessible to most of the country. But if you can, please get vaccinated. Similar to HPV और भी STIs होते हैं, बहुत सारे होते हैं, and most of them आप उनसे बच सकते हैं कॉन्डम के थ्रू. तो कॉन्डम जो है इफ़ यूज परफेक्टली, इट इज़ द ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन जो आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचाता है. बहुत सिंपल है, कुछ बहुत भारी काम नहीं करना पड़ता है कॉन्डम यूज़ करने के लिए. मेक श्योर यू हैव इट ऑन फॉर द इंटायर एक्ट. एंड पुल आउट डज नॉट वर्क एज वेल. पुल आउट में बहुत हाई फेलियर रेट होता है, तो आप अपने आप को प्रेगनेंसी के रिस्क से तो एक्सपोज कर ही रहे हैं, प्लस इन्फेक्शंस के रिस्क से एक्सपोज कर रहे हैं. Another very important thing when we're talking about condoms is that सिर्फ पेनिट्रेटिव सेक्स नहीं होता है जिससे STIs होता है, ओरल सेक्स से भी STIs होते हैं. अ थिंग नन ऑफ अस रियली रियलाइज. तो एक्चुअली कॉन्डम्स फ्लेवर्ड इसीलिए होते हैं ताकि ओरल सेक्स में दिक्कत ना आए, क्योंकि वजाइना और वल्वा में टेस्ट बड नहीं होती हैं. So always use a condom when you're having oral sex, and if you're performing oral sex on somebody who doesn't have a penis, तो आप, we have a condom here, no? I asked for it. हाँ, can I get that? And if you're having oral sex with somebody who doesn't have a penis, so you can't roll this on, you just basically take the condom, you unfurl all of it. अभी मैं पूरा नहीं करने वाली हूँ, but you snip off इसका नीचे का part. Okay, it is. You cut it off like this, which means you will be left with, obviously बड़ा होगा, मैंने पूरा खोला नहीं है, you will be left with this end. इसका top part फिर से काट दें, and then you'll be left with a tube. Take the tube and slice it open from one end. What will happen at the end is you'll be left with a sheet of latex. And when you're performing oral sex, just simply place this sheet of latex over the vulva. And that way you can have protected oral sex even if you're doing it with somebody who doesn't have a penis. Okay, so now we understand safe sex. Very important learning that it's not just penetration but oral sex as well. Tell us a little more about STI. Is it any different from STDs? Why should one be so careful about not getting it? So the most important thing that we need to know about STIs is कि more than 50% of the time कोई symptoms नहीं होते हैं. तो आप सोच रहे होंगे कि everything is hunky dory, but you might be carrying something, and not just carrying it, आप दूसरे लोग को बांट भी रहे होंगे. So if you're having anything that doesn't feel normal,
go to your doctor obviously, but इसके अलावा every time you have a new sexual partner, उससे पहले आप दोनों अपना STI टेस्ट करा लें to make sure कि आप लोग unknowingly कुछ कैरी ना कर रहे हों. STI और STD में एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है. पहले हम STD बोलते थे, अब हम STI बोलते हैं, क्योंकि हर इन्फेक्शन डिजीज़ नहीं बनता है. कुछ इन्फेक्शंस रिजॉल्व हो जाते हैं, कुछ इन्फेक्शंस डिजीज़ बनाते हैं, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. सो STIs इज़ ओके. What would be the top 3 most dangerous STDs? इट्स डिफ़िकल्ट टू ग्रेड इट लाइक दैट, बट जैसे HIV है, HIV से एड्स हो सकता है. HPV है, हेपेटाइटिस B है. These have very लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस. काफ़ी सारे STIs जो बहुत कॉमन होते हैं वो ईजिली ट्रीटेबल भी होते हैं, जैसे सिफिलिस हो गया या गोनोरिया हो गया या क्लेमिडिया हो गया. स्पेशली अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो in babies, if you're carrying these diseases and you have a baby, it can even cause blindness in the baby. तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के STIs होते हैं, which is why the best thing to do is simply just get an STI test every time you have a new partner. तो धोखे से unknowingly भी आप ना तो इन्फेक्ट हो रहे हैं, ना किसी को डिजीज दे रहे हैं और And इन्फेक्शन where दे can रहे हैं. one get an STI test? Go to your either gynecologist or your general physician. Otherwise बहुत सारे जो पैथ लैब्स होते हैं उनमें STI पैनल्स भी मिलते हैं, जो आप जाके सिंपली यू कैन आस्क फॉर इट. सो डॉक्टर क्यूट्रस, अब जब हम STD और STI समझ गए, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं. थोड़े और कॉमन इन्फेक्शंस जो होते हैं, आई थिंक फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो वेजाइना में होते हैं, उसके बारे बताइए. स्पेशली क्योंकि मैंने एक मिथ पढ़ा था, हमारे ही रिसर्च में निकल के आया कि वेजाइना को क्लीन नहीं रखा है और धोते रहो और क्लीन करते रहो, तब आपको जाके फंगल नहीं होगा. फंगल इसलिए हो गया क्योंकि आप क्लीन नहीं रख रहे हो. सो आई थिंक ऑलरेडी हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं. इंडिया में गर्मी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है. फंगस को क्या चाहिए होता है थ्राइव करने के लिए? गर्माहट चाहिए होती है, ह्यूमिडिटी चाहिए होती है. तो अब क्रॉच तो परफेक्ट इन्वायरमेंट है उसके लिए. सो एज इट इज़ वी हैव अ हायर लाइक्लीहुड होने के लिए. ऊपर से हम लोग कपड़े भी ऐसे पहनते हैं अक्सर, या तो बहुत टाइट फिटिंग कपड़े पहन लेंगे जिसमें वेंटिलेशन का मौका नहीं मिल पा रहा है. ज़्यादा मॉइस्चर प्रिवेंट करें, विच ब्रिंग्स मी टू बार बार धोने से आप मॉइस्चर ज़्यादा क्रिएट करेंगे. तो बार बार धोने से कुछ भी नहीं होता है. मतलब अच्छा नहीं होता है. वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर इज़ कि आप ऐसा समझिए कि आपके वजाइना के अंदर एक नेचुरल आर्मी होती है. तो वजाइना के अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं इन्फेक्शन से. द फर्स्ट इज़ कि वजाइना का pH जो है काफ़ी लो होता है, एनवायरनमेंट एसिडिक होता है. इसकी वजह से कुछ भी बैक्टीरिया जो वहाँ नहीं होने चाहिए वो थ्राइव नहीं कर पाते. दूसरी चीज़, वजाइना के अंदर एक नेचुरल बैक्टीरियल आर्मी होती है जो कि बैड बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देते हैं. गुड बैक्टीरिया हमें चाहिए. अब आप बार बार उसे वॉश करेंगे तो आप pH भी बदलेंगे और गुड बैक्टीरिया को भी फ्लश आउट कर देंगे. तो जो 2 प्रोटेक्शन की चीज़ें हैं उनको आप एलिमिनेट कर दे रहे हैं, विच इज़ वाई वजाइना में कुछ भी नहीं डालना है. नो वाटर, नो नथिंग, अनलेस आपको कोई दवाई दी गई है लगाने को, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट वजाइना विल टेक केयर ऑफ इट सेल्फ. कुछ साफ़ करना है तो वल्वा करिए, चाहे साधारण पानी से करिए, चाहे माइल्ड सोप से करिए, चाहे वॉश से करिए, व्हाटएवर इज़ अप टू यू. बट डोंट वॉश द वजाइना, इट विल टेक केयर ऑफ इट सेल्फ. Perfect. Tell us a little more about the different infections, fungal and bacterial. What are the things that one should do if they are suffering through it? सो कॉमनली फंगल इन्फेक्शन होता है या वजाइनल में बैक्टीरियल वैजिनोसिस बहुत कॉमन है. तो व्हाट यू वुड सी इज़ दैट यू विल हैव अ फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज. तो फंगल में जनरली बहुत इचिंग एक्सपीरियंस करते हैं लोग, एक डिस्चार्ज निकलता है. सो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज सबको होता है, बट अगर वो डिस्चार्ज अलग है नॉर्मल से, जैसा आपको नॉर्मली हो रहा है, देन यू नीड टू बी कंसर्न. फंगल में जनरली इट लुक्स लाइक कॉटेज चीज़ या दही या दूध फट जाने का जैसा टेक्सचर होता है. बैक्टीरियल वैजिनोसिस में ग्रे कलर का डिस्चार्ज होता है. इट स्मेल्स वेरी फिशी. सो इफ़ यू आर सीइंग समथिंग लाइक दिस, द फर्स्ट थिंग यू वांट टू डू इज़ गो सी योर डॉक्टर, बिकॉज फंगल इन्फेक्शन ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप होम रेमेडी से क्योर कर सकें. सेम विद बैक्टीरियल वैजिनोसिस. एंड बहुत ज़रूरी बात जो है वो समझने की ये है कि ऑलरेडी अगर आपका वजाइना का इन्वायरमेंट डिसरप्टेड है तो आपका दूसरे इन्फेक्शंस कैच करना इज़ ईजियर. So if you have a bacterial vaginosis or a fungal infection, for you to get an STI, very common.
काफ़ी बार ये अंडरलाइंग कंडीशंस का भी साइन होते हैं, जैसे जिन लोगों का ब्लड शुगर मेंटेन नहीं होता है सही से, उनका फंगल इन्फेक्शंस का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है, या अगर आप बहुत लंबी एंटीबायोटिक थेरेपी ले रहे हैं, आपका फंगल इन्फेक्शन का चांस बढ़ सकता The है. good So- bacteria are gone. Exactly. Which is why it's so important that if you're experiencing something like this, see a doctor. Don't wait to fix it with home remedies. So डॉक्टर जब ये इन्फेक्शंस हो रहे हो, फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्या सेक्स अवॉइड करना चाहिए? इज इट ओके टू हैव सेक्स? व्हाट would be your opinion as a doctor? So one of the things that happens when you're having these infections is कि वजाइना में सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, इसको हम वैजिनाइटिस बोलते हैं. तो सेक्स ऑलरेडी इतना पेनफुल हो जाएगा दैट यू नो इट डजंट हेल्प, किसी को फ़ायदा ही नहीं होगा इफ़ यू इन पेन. तो बेस्ट टू अवॉइड इट. ऑल्सो बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको वो इन्फेक्शन दे रहा हो, शायद आपके पार्टनर को एक सब क्लिनिकल फंगल इन्फेक्शन है और आपने तो मस्त ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, आपने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा एंड यू हैव सेक्स एंड यू गेट इट अगेन. तो रीअकरेंस ऑफ फंगल हो जाएगा. एंड वो सब क्लिनिकल भी हो सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप यू स्टिल कैरिंग इट. सो बेस्ट टू अवॉइड इट एट दैट टाइम एंड ऑल्सो इट वोंट बी पेनफुल.